Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update of the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. Please remember to prefix 011 if you are calling from outside Delhi. I am Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और 23314444। हमारा तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट वैल्यू रिसर्च के आशुतोष गुप्ता। आशुतोष जी, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। और अब पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं ईशान मित्तल। Thank you, Amrish ji. In his first address from new Parliament, Prime Minister Narendra Modi says, when India moves forward, the world moves forward. Foreign investors pump in nearly 40,000 crore rupees into the Indian capital market so far in May. And global crude oil prices rise for the second straight month. Brent gains 1.5% to nearly $77 a barrel. नई संसद में प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार दूसरे सप्ताह तेजी दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड 1.7% बढ़कर $77 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। Modi today said that when India moves forward, the world moves forward. In his first address from new Parliament, he remarked that the new building of the Parliament will call for the development of the world along with the development of India. Addressing the nation in the Lok Sabha chamber of the new Parliament building, Mr. Modi stressed that this is not just a building. It's a reflection of Atmanirbhar Bharat and aspirations and dreams of 140 crore Indians. He said this is the temple of our democracy, giving the message of India's determination to the world. On the occasion, Mr. Modi launched a 75 rupee denomination coin and stamp on the historic occasion. He arrived in the Lok Sabha chamber of the new Parliament building as members of Parliament this afternoon with Lok Sabha Speaker Om Birla and other ministers. Earlier in the morning, Prime Minister Narendra Modi dedicated the newly constructed Parliament building to the nation. The new building of Parliament symbolizes the spirit of self-reliant India, Atmanirbhar Bharat. The newly constructed Parliament building has been built in record time with quality construction. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the new building of Parliament on the 10th of December 2020. And with that, we move on to our first caller. It's Rajesh from Jaipur. Rajesh ji, please ask your question. नमस्कार सर। हेलो। जी बताएं राजेश जी। हाँ, मैंने सर लॉन्ग टर्म के लिए मेरा एसेट कैनेडा रोबेको और यूटीआई के फ्लेक्सी कैप फंड में और ब्लू चिप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है सर। और अभी मैं करीब 8-9 साल के लिए और फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो सर मेरे को आपसे ये पूछना था क्या इन्हीं फंड्स में और इन्वेस्ट कर दूं या आप कोई और फंड सजेस्ट करेंगे? थैंक यू सर।
नहीं, मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ आपने इक्विटी फंड्स का चुनाव किया है। मिराई आपने एक मिराई का फंड बोला, एक यूटीआई का बोला, एक कैनरा रोबेको का बोला। मेरा ख्याल में मिराई के फंड काफी ठीक ठाक हैं। पिछला साल कुछ उनके लिए थोड़ा निराशाजनक रहा है उनके पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि वो खास कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप उसमें बने रहिए। कैनरा रोबेको का भी प्रदर्शन पिछला साल थोड़ा पुराने उनके रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा हल्का पड़ा है, लेकिन आप उसमें भी अपना निवेश जारी रखिए। यूटीआई में मैं समझता हूं कि आप निवेश जितना है आप अपना उतना बरकरार रखें। आप और पैसा डालना शायद मेरी सलाह में रोक सकते हैं, बाकी में आप जारी रखिए। जी, और इस बीच हमारे साथ हमारे श्रोता प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी प्रेम जी बताइए। हेलो, आवाज ठीक से आ रही है सर? जी जी हाँ, सवाल पूछिए। जानकारी ले। आपकी आवाज कट रही है, साफ नहीं आ रही है। हाँ जी, अब ठीक आ रही है? जी जी हाँ, अब ठीक है, पूछिए। सर हमें पैसा लगना है, क्या हमें हर महीने इसके नहीं समझ में आ रही है आपकी आवाज। Never mind, let's move on to the next item on the news. जी, अब एक बार दोबारा कॉल करें, तब तक हम चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2 से 26 मई के बीच इक्विटी में 37,317 करोड़ रुपए डाले। एफपीआई ने इसी अवधि में डेट बाजार में 2,579 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह देश के पूंजी बाजारों में 39,896 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने लगभग 11,630 करोड़ रुपए और मार्च में लगभग 7,936 करोड़ रुपए का निवेश किया था। आशुतोष जी, एक अच्छी खबर है जो हर सप्ताह हमें मिल रही है कि लगातार जो विदेशी निवेशकों का निवेश है एफपीआई का, वो भारतीय इक्विटी बाजार में खास तौर से बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल फंड इस निवेश से किस तरह से आगे लाभान्वित होते हैं? देखिए, जब विदेशी निवेशकों का पैसा भारतीय बाजार में लगता है तो उसकी वजह से भारतीय बाजारों में एक बढ़ोतरी देखी जाती है। एक डिमांड और सप्लाई का नॉर्मल एक जो खेल हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं, जब बाहर का पैसा मार्केट्स में आता है, यहाँ के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ती है और मार्केट्स में उनका प्राइस बढ़ता है। नेचुरली जब प्राइस बढ़ता है तो म्यूचुअल फंड्स क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स में भी निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स को भी उसका फायदा होता है और म्यूचुअल फंड्स की वजह से जो उनके निवेशक हैं उनको फायदा होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। विदेशी निवेशकों का कभी पैसा आता है, कभी पैसा जाता रहता है, तो ये इसके साथ साथ उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं। मेरा ख्याल में ये पैसा आ रहा है और इसकी वजह से जो भी फायदा निवेशकों को मिल रहा है एक थोड़ी सी खुशी की बात है। लेकिन मेरा ख्याल इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स को देखने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा उसकी वजह से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अपने लक्ष्य को दायरे में रखते हुए आप निवेश करते चलें तो विदेशी निवेशकों का पैसा आएगा जाएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। जी, और प्रेम जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, जी सवाल पूछिए। सर मैं म्यूचुअल फंड में इकट्ठा एक ही बार पैसा लगाना चाहता हूँ और 5 साल के लिए 2 लाख रुपए, तो क्या ये लगाना ठीक से रहेगा कि कैसे, या मैं किस? जी 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 आशुतोष जी। देखिए प्रेम जी, आपने कहा कि 5 साल के लिए आप लगाना चाहते हैं। एक साथ आप पैसा ना लगाएं। एक साथ पैसा लगाने में हमेशा खतरा बना रहता है क्योंकि इक्विटी मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहती हैं। उतार चढ़ाव बहुत जल्दी बहुत छोटे टाइम पीरियड में देखे जाते हैं। आप जब पैसा लगाएंगे, अगर उसके बाद मार्केट में 10, 15, 20% की गिरावट आ गई कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में, जो कि होना काफी संभव होता है इक्विटी में, कोई कंफर्मिटी के साथ कुछ नहीं कह सकता है, तो वो एक काफी निराशाजनक फेज एक इन्वेस्टर देख सकता है। तो मेरी सलाह ये है, आप 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, आप
25 से 30% अपना पैसा मेरे हिसाब से इक्विटी में रखिए, बाकी पैसा फिक्स्ड इनकम में। उसके लिए आप डेट म्यूचुअल फंड्स देखिए, 25-30% के लिए आप कुछ अच्छे डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड देखिए। डेट वाला पैसा आप एक साथ जरूर लगा सकते हैं, इक्विटी वाला पैसा कम से कम अगले 10-12 महीने पे स्प्रेड करके हर महीने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को लगाइए, और 5 साल में मुझे लगता है कि आपके लिए लाभदायक जरूर साबित होना चाहिए। We have our next caller on the line, Ram Saran from Delhi. Ramji, please ask your question. हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं अपने पुराने मकान को बेच करके उस पैसे को बैंक में जमा करना चाहता हूँ, करीब 30-35 लाख रुपए। तो क्या उस पर मतलब इंटरेस्ट मिलेगा जी, मतलब टैक्स? देखिए, जब आप मकान बेचेंगे तो उसके कैपिटल गेन टैक्स के रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। आप जितनी वैल्यू पे मकान बेचते हैं वो आपका रियलाइजेशन होता है। आपने मकान कब खरीदा, किस साल में खरीदा, कितनी वैल्यू पे खरीदा, उसके हिसाब से उस पर एक इंडेक्सेशन लगता है। तो ये निर्धारित होता है कि आपका एक डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, और उसके बेसिस पे उसका एक कैपिटल गेन टैक्स बनता है, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। बचा हुआ पैसा आप उसके बाद आप उसका कुछ भी करिए, आप उसको कैसे भी निवेश करिए। आप बैंक में रखना चाहते हैं, बैंक में आप रखिएगा, तो उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। Sir, I wanted to ask you that there's a lot of chatter about the US debt ceiling crisis. So, and we also heard today that there has been an apparent compromise between the government and the Republicans. But what has been the shadow that has been cast by this crisis, and if you could shed light on that, for especially with respect to MF customers? Sure. So, yes, as you rightly pointed out, that this has been an issue which has been a little bit of an overhang, and we've been in this situation in the past as well. It has been that often US in the past has been close to hitting their debt ceiling, and they've in the past as well we've seen that there have been last minute deals being brokered between the two main parties over there, and things have then continued on. This time also there are a lot of hopes and expectations that somewhat of a similar outcome can be seen, and if that happens then markets can continue to work as usual. But if this thing gets prolonged further, and as the timeline approaches, there could be jitters, there could be more talks, and it will create noise in the market. And when there is noise in the market, markets react in the short term. US markets would react, but Indian markets would not be insulated either. So there could be volatility, there could be ups and downs basis the news flow that passes through. But I think from a mutual fund investor's perspective, yes, of course, when the markets move up and down, the daily NAVs would react, and you would see the returns getting volatile on a day-to-day basis. But a long-term mutual fund investor need not worry. Like so many other issues that keep happening every now and then, they can treat this one as well as nothing more than noise, and stick to their long-term investment plans, and need not make any deviation in their plans because of this particular reason. Thank you. Moreover, there's been a rise that has been witnessed in MF equity assets. According to a report, around 20 mutual funds have seen a rupee 22 trillion odd rise in equity assets. What is it that's driving these mutual funds to load up on this category? And do you think that this is a sizable kind of rise, or do you think that they are just being cautious with respect to the market when this kind of a rise is seen? No, I think certainly if you take a slightly broader perspective in the last few years, certainly more and more people are waking up and realizing the potential of market-linked investments like mutual funds. India has traditionally been a fixed income market. People have put their money, deposited lakhs and crores of their money into the fixed deposits of banks like ICICI and HDFC, and they've earned fixed rates, and post-tax returns have been, pretty low. But seldom, have they invested in stocks of these banks. If they would have invested in the last 2 decades in stocks of these banks, then what they earn through the fixed deposits of these banks would have been a fraction of what otherwise they would have earned. No, but the broad point is that more and more people are looking beyond traditional conventional investment avenues like fixed deposits and waking up to the potential of equity markets. And mutual funds offer by far the most convenient, the most transparent, and the most cost-effective
effective way for vast majority of Indians to participate and benefit from the growth story of India. So the rise in the mutual fund assets is a very welcome move in that respect. More and more people are benefiting from the growth of their own country. Amrish ji just mentioned about the participation of foreign investors into the Indian markets. When foreign investors are benefiting from the India growth story, it's high time that Indians start participating and benefit from it. So the trends in rising mutual fund assets, more and more people waking up to equities, is a very welcome move. The only word of caution is people have to really keep a long-term view, because often it is seen that on the back of strong performance, like we have seen in the last 5 years in equity markets, people come in scores, but a disappointing phase of 6 months or even 1 year is good enough to shake their confidence and their belief, and a lot of people would prefer to book losses and move out and never to return back. That would be a disappointing outcome for all these investors who are coming in. So they need to be patient, they need to be disciplined with their investing and stick for long term, and that should prove rewarding. आशुतोष जी, जैसा आपने कहा कि जो कन्वेंशनल तरीका है फिक्स डिपॉजिट का, जो जमाने से चला आ रहा है और सारे लोग करते हैं, और उसके तरफ धीरे धीरे पीपल हैव मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड. आई मीन फर्स्टली द स्टॉक मार्केट एंड देन द फ्यूचर म्यूचुअल फंड. तो अगर आप कोई ऐसा नया इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि म्यूचुअल फंड उसके पूरे पोर्टफोलियो में कहाँ तक होना चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट से उसका किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड में पहली बात इन्वेस्ट करना काफी सिंपल है. 3 से 5 चीजें मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक नए निवेशक के लिए. पहली बात तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए. आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का एक्सपीरियंस नहीं है. आप जो भी आपका एक सरप्लस आप जनरेट करते हैं मंथ ऑन मंथ, आप बहुत उसका बड़ा प्रोपोर्शन ना डालिए. आप शुरू में छोटा 5,000, 10,000, 15,000 रुपए के एसआईपी से शुरू करिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्केल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कितना है. और आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए एक साथ. आपके पास एक साइजेबल एक्यूमुलेशन है तो भी आप एक साथ मत इन्वेस्ट करिए, आप उसको स्प्रेड करिए. और ये छोटा अमाउंट आप कम से कम अगले 3 साल तक मार्केट को देखे बिना, उसके उतार चढ़ाव से चिंता किए बिना आप इन्वेस्ट करते रहिए. क्योंकि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड से लाभ लेने के लिए सबसे बड़ा एक जो इंग्रेडिएंट है वो होता है कि आपकी बिलीफ होनी चाहिए. क्योंकि मार्केट्स आपको सरप्राइज देती रहेंगी, ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी. कभी कभी मार्केट्स में न्यूज की वजह से इतना निराशाजनक माहौल हो जाता है कि सब खत्म होने वाला है. हमने वो देखा कोविड के टाइम पे भी, जब पहला लॉकडाउन लगा, तो ऐसे फेज आते रहते हैं. नहीं, लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद तो काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ म्यूचुअल. एक हफ्ते में मार्केट जब गिरी थी उसमें, तो उसमें बहुत लोगों की रातों की नींद भी उड़ी थी. तो देखिए, ये आपका जब बिलीफ होगा, बिलीफ कैसे आएगा? आपको मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं आएगा, जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे. तो आप छोटे से शुरू करिए, ऐसा अमाउंट जिसको इन्वेस्ट करके और मार्केट गिर जाए तो आपकी रातों की नींद ना उड़े. और आप 2-3 साल तक लगातार करिए. और एक शुरुआती इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक कैटेगरी है. हमारा विचारधारा में काफी अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि ये 75% पैसा इक्विटी में लगाते हैं, आपका 25% पैसा डेट में रहता है. इससे होता है कि जब भी मार्केट गिरती है, आपका फंड मार्केट से थोड़ा कम गिरता है, तो आपको हमेशा ही ये लगता है कि चलो मेरा लॉस कम है, मार्केट से कम है. वो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हेल्प करता है टू सी थ्रू सच फेजेस. और जैसा मैंने कहा कि आप 2-3 साल लगातार इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक विश्वास, एक ट्रस्ट बनेगा, एक ट्रांसपेरेंसी आप देखेंगे अपने पैसे को बढ़ते हुए. तो मेरा ख्याल ये एक काफी फाउंडेशनल होगा आपके लिए, एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टर, एक लाइफ लॉन्ग बिलीवर बनने के लिए. तो अगर समराइज मैं करूं, आप छोटे अमाउंट से शुरू करिए, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए, बिना मार्केट की चिंता करिए, कम से कम 3 साल तक आप जरूर उसको कंटिन्यू करिए. और एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से शुरू करिए, आगे की चिंता आप उसके बाद करिएगा. And we have our next caller on the line, Rakesh ji from Faridabad. Rakesh ji, please ask your question. हाँ, नमस्कार सर. नमस्कार सर, जैसे आप बता रहे कि आप कम से कम 3 साल के लिए पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं और मिनिमम से लगाएं. अगर हम 1,000 रुपया महीना लगाते हैं 3 साल के लिए, तो हमारा 36,000 रुपया हो जाता है. तो क्या हम बीच में से 1,000 रुपया लगा रहे हैं, तो हम बीच में 2,000 रुपये भी डाल सकते हैं, 3,000 भी डाल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल. म्यूचुअल फंड्स काफी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है.
आप कभी भी आप अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, रोक सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, आपको काफी महीने दर महीने पता चलेगा कि आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी हो गई है, किस तरह से पैसा बढ़ रहा है। यहां तक कि आपको ये भी पता चलेगा कि जो आप पैसा लगा रहे हैं, आगे म्यूचुअल फंड मैनेजर वो आपका सारा पैसा लेकर आगे किन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको काफी कंट्रोल रहता है, आपको काफी ट्रांसपेरेंसी से पता चलता है कि आपका पैसा कहां लग रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह घट रहा है, और आपके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। Thank you, and we move on to our next item. Rising for the second straight week, global crude oil prices rose nearly 1.7% as markets remained cautious about debt talks and fresh worries about a Federal Reserve interest rate hike next month that would curb demand after strong US consumer spending data and inflation readings. Brent crude oil futures rose 1.7% during the week to end at $76.95 a barrel. US crude gained 1.6% during the week to close at $72.67 per barrel. While there is speculation that negotiators will reach a deal soon to raise the US government's $31.4 trillion debt ceiling, talks could easily spill over after the weekend. और यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज रविवार के दिन मार्केट मंत्रा में हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को ले रहे हैं। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और दूसरा नंबर है 23314444। आप हमारे तीसरे नंबर पर भी फोन कर सकते हैं 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आशुतोष जी, अभी आप हमारे श्रोताओं को निवेश करने की आपने बहुत ही आसान सी टिप्स दी, लेकिन अगर किसी के पास कुछ ज्यादा पैसा है और एसआईपी के थ्रू ही वो करना चाहता है, तो आपने जैसे बताया कि डाइवर्सिफाइड फंड्स के थ्रू करें, तो अगर कोई 3 या 4 फंड्स में चुनाव करना चाहता है तो किस किस वैरायटी के फंड्स का उसे चुनाव करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आप सबसे पहले तो एक निवेशक को ये निर्धारित करना होगा कि उनका टाइम होराइजन क्या है, कितने सालों के लिए वो निवेश करना चाहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर कोई बहुत ही कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल इक्विटी फंड से उन्हें दूर रहना चाहिए। आप अगले 1, 1.5, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के लिए तक भी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ, तो ज्यादा आप अपना पैसा डेट में ही रखिए। डेट में एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की कैटेगरी होती है, मेरे ख्याल वो काफी अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत ज्यादा वो रिस्क नहीं लेते हैं किसी तरह का, और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम है, साथ में आपको लिक्विडिटी भी मिलती है। तो मेरा ख्याल में वो वाले फंड्स इस टाइप के आपके निवेश के होराइजन के लिए काफी सूटेबल है। उससे आप जैसे आपका टाइम पीरियड उससे ज्यादा होता है, 3 साल से ऊपर का ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपना थोड़ा इक्विटी उसमें डालिए। आप रखिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स ही, फ्लेक्सी कैप फंड्स, लेकिन उनमें आप सारे पैसे की जगह 25%, 30% डालिए। आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और आप 50%, 60% तक पैसा लगा सकते हैं। और अगर आप 8-10 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आप उसमें और भी ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, 75%, 80%। आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप 100% इक्विटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। आप रहिए फ्लेक्सी कैप फंड्स में, लेकिन डाइवर्सिफाई करिए 3 से 4 अलग अलग फंड कंपनी के फंड्स में, क्योंकि हर फंड मैनेजर का मार्केट्स का अपना एक नजरिया होता है। उनका अच्छे स्टॉक्स चुनाव करने की अलग अलग इन्वेस्टमेंट शैली होती है, अपनी निवेश की पद्धति होती है, और जरूरी नहीं कि हर किसी की इन्वेस्टमेंट पद्धति हर वक्त अच्छे से काम कर रही हो। तो डाइवर्सिफाइड होने का फायदा यही होता है कि अगर किसी फंड मैनेजर के फंड अच्छे नहीं चल रहे, उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट कॉल्स बहुत अच्छी नहीं जा रही हैं, तो आपको एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने से जो निराशा देखने को मिल सकती है, बैलेंस हो जाएगी, तो वो बैलेंस हो जाएगी। तो आप 3 से 4 अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स का चुनाव करें, फंड्स ऐसे जिनका एक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, और जरूरी है कि वो जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं वो लंबे समय से वो मैनेज कर रहे हो, क्योंकि तभी आप ये बोल पाएंगे कि ये इस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस है जो फंड में दिख रही है।
तो ऐसे आप 3 से 4 फंड का चुनाव करिए और उनमें मंथली आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते चलिए. Thanks, and we have our next caller, Karthik from Andhra Pradesh. Karthik, please go ahead with your question. नमस्कार जी. Namaskar. हमको शॉर्ट टर्म पीरियड का इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, जैसे 1 साल 2 साल के लिए, और हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक से कहाँ से सीख सकते हैं? देखिए 1.5-2 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में, जैसा मैं अभी कह रहा था, आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स देखिए. आप HDFC शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, एक्सिस का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, ये 2 फंड आप मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं. डेट में इन्वेस्ट करने के लिए आप, अगर आपके पास एक पैसा इकट्ठा हुआ है, वो आप एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. डेट में इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको स्प्रेड करके मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करें, और आप 1.5 से 2 साल के लिए मुझे लगता है ये फंड अच्छे रहेंगे. जहां तक सीखने की बात है, देखिए ये कोई पर्टिकुलर रिसोर्स में आपको ऐसा नहीं बता पाऊंगा कि जहां आप देखिए, आप बस बहुत ज्यादा नॉइज से दूर रहिए. अगर आप, मैं ये आपको जरूर बता पाऊंगा कि क्या आपको नहीं देखना है. बहुत सारे जो डेली न्यूज चैनल, जो फाइनेंशियल चैनल्स हैं, जिन पे मिनट बाय मिनट की मार्केट की उतार चढ़ाव की खबर आती रहती है, वो आप उनसे दूर रहें, क्योंकि आपको उसमें नॉइज ज्यादा होती है, कुछ आपको काम की बात पता नहीं चलती, और मार्केट गिरेगी तो उससे आपको घबराहट और ज्यादा होगी. तो आप कोई पैनिक में कोई गलत फैसला लेंगे, इससे बेटर है कि आप उससे दूर रहें. आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मार्केट नॉइज से दूर रहें, और मेरा ख्याल यही पहली बात है जो आपको करनी चाहिए. और इस बीच गाजियाबाद से हमारे श्रोता देव कुमार जुड़ चुके हैं. देव जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हेलो, नमस्कार जी. जी, सवाल पूछिए. सर, मैं FD में मेरा पैसा लगा है, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहता हूँ. आपके द्वारा बताया जा रहा है कि इसका एक मैनेजर होता है. क्या ये मैनेजर कौन होता है, कैसे होता है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, उसके थ्रू हम पैसा लगाने के लिए बातचीत कर सकते हैं, वो हमें समझा सकता है क्या? इसके बारे में बताइए. नहीं, आप फंड मैनेजर से मिल नहीं सकते, आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते. देखिए म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपके जैसे छोटे निवेशक, जिनके पास हमारी अर्निंग्स में से कुछ सेविंग्स होती हैं, वो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम वो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं. ऐसे हमारे जैसे लाखों करोड़ों निवेशक होते हैं, जिनका सारा पैसा मिलकर कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए बन जाते हैं. 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, ये सारा पैसा इकट्ठा होता है जो एक फंड मैनेजमेंट टीम को दिया जाता है मैनेज करने के लिए. उन फंड मैनेजमेंट टीम का एक लीडर होता है, जिसे फंड मैनेजर बोलते हैं, जो सबसे आपका ये अहम भूमिका निभाता है ये डिसाइड करने में कि आपका पैसा कौन से स्टॉक्स में लगेगा, कहाँ निवेश होगा, क्या खरीदा जाएगा, क्या बेचा जाएगा. तो वो ये काफी ध्यान रखते हैं इस पैसे का. अपनी जो रिसर्च करते हैं वो कंपनीज से जाके मिलते हैं, कंपनीज के प्रमोटर्स से जाके मिलते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कंपनी उन्हें पसंद आ रही है, किन में पैसा बढ़ने की उम्मीद है. ये सब यही उनका फुल टाइम काम है. तो ये काम वो करते हैं और इस बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं और आपके बिहाफ पर आपका पैसा मैनेज करते हैं. टाइम टू टाइम वो कभी आपको अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कभी लेटर्स लिखते हैं, अपनी वेबसाइट पर अपनी कमेंट्रीज पब्लिश करते हैं, उनके आप इंटरव्यूज कई जगह पे पब्लिश होते हैं, वो आप देख पाते हैं. आपका अपना कोई सवाल है तो आप फंड कंपनी की कस्टमर सपोर्ट टीम को अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन वो क्वेश्चन जवाब देने के लिए कौन सही टीम है, वो होपफुली आपको आपका आंसर लेके दे पाए. लेकिन आप डायरेक्ट फंड मैनेजर से बात नहीं कर सकते हैं. हाँ, जैसे काफी म्यूचुअल फंड्स में देखा है, वो खुद ही रीच आउट करते हैं लोगों तक डिफरेंट तरीकों से, और जो इन्वेस्टर्स के सवाल हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं. और इसी के साथ हम चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. आशुतोष जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. जी, बहुत धन्यवाद. Thank you, Ashutosh ji. And before we close, a reminder of the headlines. In his first address from new Parliament, Prime Minister Narendra Modi says, "When India moves forward, the world moves forward." Foreign investors pumping nearly 40,000 crore rupees into the Indian capital market so far in May. And global crude oil prices rise for the second straight week as Brent gains 1.7% to nearly $77 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra.